Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 4. We are going to start unit 2. Its title is Good Friends. Yes, my dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division of this unit which I am going to follow. You may download it, you may follow it as it is or modify it for your convenience. So my lecture division is like this. In lecture 1, under the title of grammar, we learn about masculine, feminine and neuter gender of nouns, and we'll cover page number 19 of the book. And the SLO will be to classify and change the gender masculine, feminine, neuter of more nouns from immediate and extended environment. Lecture 2 again about grammar, adjectives, page number 17 of the book, and the SLO is to classify adjectives of quality, quantity, quality, size, shape, color and origin. Lecture 3 under the title of grammar, we learn about punctuation marks, page number 17 of the book, and the SLO is to recall the rules of punctuation learnt earlier. Lecture 4 pronunciation skills, and we learn about consonant cluster, page number 16 of the book, and the SLO is to recognize and pronounce with reasonable accuracy common 3 consonant cluster in initial positions. Lecture 5, we'll start reading and a part of comprehension, page number 13 and 14 of the book, and the SLOs to use pre-reading strategies to predict the content vocabulary of the text from picture and title, apply while reading strategies to interact with the text, to make simple inferences using context of the text and prior knowledge. Lecture 6 will complete reading and comprehension of the book, page number 13, 14 and 15. And the SLOs use pre-reading strategies to predict the content vocabulary of the text from pictures and title, apply while reading strategies to interact with the text, to make simple inferences using context of the text and prior knowledge. Lecture 7 under the title of listening and speaking, we'll learn to take turns, page number 18 and 19 of the book, and the SLO will be to distinguish fact from opinion and demonstrate conventions and dynamics of oral interaction in group to take turns. Lecture 8 under the title of writing, we learn to replace words and phrases, page number 20 of the book, and the SLO to make sentences by replacing words and phrases in given sentences. So this is how we are going to complete this unit. Now let's see what this unit is all about. Yes, my dear students. The title of the story is Good Friends. क्या मतलब है good friends का? अच्छे दोस्त. ओके वो तो हमें ये पिक्चर से भी नज़र आ रहा है. There are 2 boys और वो यहाँ they are talking, they are happy, so they are good friends. और इसका थीम क्या है? Peaceful coexistence, peace, education and friendship. पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मतलब ये है बेटा कि हम एक माशरे में जहाँ रहते हैं हमें बाहमी इत्तफाक और मोहब्बत से रहना चाहिए. यही एक अच्छे माशरे की बका के लिए ज़रूरी है. और उसका तरीका क्या है? बी फ्रेंडली. ओके, बी फ्रेंडली विद एवरीवन. दूसरों से फ्रेंडशिप का ये मतलब नहीं है कि यू आर गुड विद योर फ्रेंड्स ओनली. फ्रेंडशिप मीन्स कि आपका जो बिहेवियर है वो फ्रेंडली होना चाहिए हर एक के साथ. देखिए हम हर एक के साथ सेम तो नहीं हो सकते, वी ऑल आर डिफरेंट. तो जो हमारे जो डिफरेंसेस हैं हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसमें हमें फ्रेंडली. येस वी कैन डिस्कस आवर डिफरेंसेस एज वेल कि आपने ये क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं हम कर सकते. लेकिन उस सब का पीछे जो आपका बैक ऑफ द माइंड आपकी थॉट है वो ये होनी चाहिए कि हम एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे अपनी सोसाइटी में फॉर पीसफुल एग्जिस्टेंस. हम ताकि हमारा जो माशरा है उसमें जो अमन है वो कायम रहे. ठीक है, क्योंकि बेटा माशरा जो है एक फ़र्द उसकी इकाई है. फ़र्द से स्टार्ट होकर पूरा माशरे में हम मतलब एक फ़र्द है, देन योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, दिस इज़ हाउ वी ग्रेजुअली इम्प्रूव. तो जब हम एज इंडिविजुअल एक यूनिट एक पर्सन के साथ डील करते हुए वी आर फ्रेंडली और यही हमारा रवैया बढ़ता जाता है तो इसका मतलब है कि हमने अपनी सोसाइटी को पीसफुल बना लिया. दिस इज़ व्हाट पीस एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट. राइट तो हमारी इस स्टोरी में इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, लेट्स सी. इसमें मेंशन है जी इट वाज द समर सीजन, हाशिस फैमिली माइग्रेटेड. माइग्रेट का क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. और वो कहाँ से आए थे? विलेज से सिटी में आए थे. तो आपके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसी फैमिलीज़ होंगी जो विलेज से सिटी में आते हैं. इसकी बहुत सी रीजंस होती हैं, साइंस में भी आप पढ़ते हैं.
कि लोग अच्छी नौकरी के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए और बहुत से पर्पसेस होते हैं, यू मे डिस्कस, ओके। तो हाशिर की फैमिली भी इसी तरह विलेज से सिटी में आई। आफ्टर अ फ्यू डेज हाशिर्स फादर टुक हिम टू अ न्यू स्कूल नियर टू हाउस एंड द हाशिर गोट एडमिशन टू द क्लास। इस तरह से अब वो ज़ाहिर नई जगह पर आए हैं, वो नए स्कूल में गए और हाशिर जो थे वो स्कूल में जाकर थोड़े ही वॉज नॉट लाइक वेरी हैप्पी, ही फेल्ट अलोन, और उसकी जो परफॉर्मेंस थी ना वो ख़राब हो गई, यानी ही वॉज नॉट डूइंग। ये बेटा, ये हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो हमारी एक ह्यूमन नीड है। हम वी नीड समवन टू टॉक अबाउट, जिनके साथ ब्रेक टाइम में आप बैठ सकें, लंच कर सकें, चिट चैट, दिस इज़ ह्यूमन नीड। अगर आपके पास दोस्त नहीं होते तो फिर ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं। द सेम हैपेंड विद हाशिर। और फिर क्या हुआ कि एक दिन उनकी क्लास में एक नए स्टूडेंट फैज़ान का एडमिशन हुआ, ठीक है। और वो दोनों जो थे दे सैट टुगेदर, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, ब्रेक में वो इकट्ठे थे और फिर उन्होंने जब बातचीत की तो उन्हें पता चला कि वो तो नेबर्स भी हैं। तो इन दिस वे दे बिकेम फ्रेंड्स। अब क्या हुआ, वन नाइट हाशिर एंड हिज फैमिली वर स्लीपिंग, इट वॉज मिडनाइट, और ऑल ऑफ सडन हाशिर्स हाउस कॉट फायर। ये एक यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ कि उनके घर में आग लग गई। अब जब आग लगी है, क्योंकि वो फैज़ान वॉज हिज नेबर, उसने इसको पॉइंट आउट किया और उसको हेल्प करने के लिए ही टुक ऑल दी मेजर्स। उसने फैज़ान ने अपने पेरेंट्स को जगाया, अपने नेबर्स को जगाया, उन्होंने सारी जो जब कहीं आग लग जाती है तो फर्स्ट एड आपको पता होनी चाहिए। वी शुड ट्राई टू सेटल इट डाउन, सेट ऑफ द फायर। वही उन्होंने किया, अपनी बकेट्स ली, पानी डाला, फायर ब्रिगेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या करना है, अपने बड़ों को बताएं। और जो हमारे इमरजेंसी नंबर अब सब बच्चों को पता है 1122, उसमें फायर ब्रिगेड भी है और उसमें कोई भी एक्सीडेंट जो है दे क्विकली रीच देयर, दे सेटल डाउन दी, दे ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो उस बच्चे ने भी अपने अपनी हाजिर दिमागी से काम लिया, अपनी फैमिली को जगाया, नेबर्स और जो इर्द गिर्द के लोग थे उनको जगाया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और उन सब ने मिलकर उस आग को बुझाने की कोशिश की और फाइनली वो इस आग को बुझाने में कामयाब हो गए। So in this way Hashir and his family were safe and sound. They thanked the people. और सबसे बड़ा उन्होंने फैज़ान का शुक्रिया अदा किया। और जो हमें इस स्टोरी से मैसेज मिला है वो क्या है, A friend in need is a friend indeed. ओके, सो हमने अपने दोस्तों का हर लम्हे ख्याल रखना है, उनकी केयर करनी है। और दोस्त का मतलब सिर्फ वो नहीं जिसके साथ आप बैठते हैं, जो आपकी क्लास में है। एवरीवन अराउंड अस, वी शुड बी फ्रेंडली विद देम। हमें उनका ख्याल रखना है, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने स्कूल मेट्स का और अपनी सोसाइटी के सब लोगों का। ये इस स्टोरी का थीम है और इंशाल्लाह हम इसको ग्रेजुअली पूरे स्टेप्स में पढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो हम इसका ग्रामर पोर्शन लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे। टिल द टाइम यू मे रीड दिस स्टोरी आउट, आप इसको खुद से भी पढ़िए और जो भी अच्छी चीज़ें आप सीखते हैं अपने साथियों को, अपने छोटे बहन भाइयों को ज़रूर बताइए। दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो विल स्टार्ट यूनिट 1 लेक्चर 1, यूनिट 2 लेक्चर 1। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।